Good morning, students. Here we are going to start with our next lecture with the same chapter, that is arithmetic progression. Okay, I am going to take the next topic of the chapter, that will be sum of n terms of AP. This is the last topic for this chapter. We are going to take many examples on this so that you will be able to understand the concept very clearly. Okay, the sum of n terms of AP. So, the sum of n terms of AP is given by the formula Sn is equals to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. So, students, आपको ये पता होगा कि यहाँ पे n क्या होगा? Number of terms. Okay? A क्या होगा? First term. What will be d? The common difference. अगर आपको टर्म्स अच्छे से पता है, क्लियरली पता है, you will be able to find all this, and Sn is the sum of n terms. Okay, you please note down this formula with the denotions of the letters. अगर आपको ये letters के denotions पता है तो आपको ये formula easily याद हो जाएगा. This is one formula, and one more for Sn is given by Sn is equals to n by 2 a plus l. Now you would ask me what is L? L क्या कहा जाता है? मैंने पहले भी फर्स्ट लेक्चर में बताया है. L is the last term. Okay? A is the first term, N is the number of term, and Sn means the sum. अगर आपको कोई भी AP में फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया गया है, we can easily use this formula. इतना बड़ा फॉर्मूला यूज करने से अच्छा हम ये छोटे वाला फॉर्मूला यूज करें. इसीलिए यहाँ पे Sn के दो फॉर्मूलेज दिए गए हैं. Please note down both the formula and I'll take some example on it for you to understand. Now let's start with our discussion. Find the sum of AP 1 upon 15, 1 upon 12 till the 11th term. तो यहाँ पे आपको क्या क्या given है. The most important thing is जो क्वेश्चन में given things होते हैं वो हमें पहले note down कर लेना. So let's note down the points. तो first given thing A is equals to 1 upon 15. What will be D? Term 2 minus term 1. Okay? यहाँ से आपको D मिलेगा 1 by 60. LCM लेकर के आपको यहाँ पे सॉल्व करना है. And N will be 11. ठीक है? 11th टर्म तक पूछा है तो आपका N क्या होगा? 11. So अभी Sn के फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. So it will be 11 by 2. 2 into A is 1 by 15 plus 11 minus 1 into 1 by 60. So 11 by 2, 2 by 15 plus 11 minus 1 is 10. 10 1 से 10 by 60. अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? By taking the LCM we get 8 plus 10 by 60. इसे और सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा 18 by 60, and by solving this equation we get here is 2 plus यहाँ पे आपको ये वैल्यूज मिले. इसको और आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 99 by 60 और आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट विल बी 33 by 20. तो आपको यहाँ पे मिल गया सम ऑफ 11 टर्म्स. ये बहुत ही इजी मेथड है अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो तो. Now you will tell मैम आपने एक और फॉर्मूला दिया था Sn is equals to n by 2 a plus l. ये मेथड आप कब प्रेफर करेंगे? जब आपको यहाँ पे लास्ट टर्म पता हो तब. अभी हमारे इस इक्वेशन में हमें लास्ट टर्म पता है क्या? नहीं. So for that we will have to find the number of terms a l, ये सब हमें फाइंड करना रहेगा. तो ये इक्वेशन आप तब यूज करेंगे जब आपको लास्ट टर्म दिया होगा तब. ओके स्टूडेंट्स, ये मेथड 2 उसके लिए यूज किया जाता है. यू कैन सॉल्व इट हियर आल्सो, बट ये आपको क्या हो जाएगा? बहुत ही लॉन्ग मेथड हो जाएगी. सो फॉर दिस क्वेश्चन वी प्रेफर दिस मेथड, दैट इज Sn is equals to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. Very easy, just substitute the formula, simplify it and get the answer. Did you understood? Now let us take next example for this question. Now students, let us take the next example. इसमें हम क्या कर रहे हैं? Find the sum of. आपको यहाँ पे AB दिया गया है, ओके, और आपको इसका सम निकालना है. Now just tell me what are the given things. इसमें A
क्या होगा 34, b क्या होगा 32 minus 34 that is minus 2 and what will be 10. हमें बताया गया है कि ये सम कहाँ तक फाइंड करना है 10 तक फाइंड करना है, तो 10 is the last term. आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं n is equals to 10. One thing you don't know here is number of terms. इन दोनों के बीच में और कितने टर्म्स हैं ये हमें पता नहीं है. So n is equals to question mark. The very first thing you are going to do is find n. और वो हम कैसे फाइंड करेंगे an के फॉर्मूले से, because we know the an the last term is 10. First term is 34. n minus 1 into d is minus 2. Okay, so 34 minus 2n plus 2. 10 is equals to 36 minus 2n minus 36 plus 10 is equals to minus 2n. You get minus 26 is equals to minus 2n and we get the value of n as 13. हमें यहाँ पे n की वैल्यू मिल गई है. Just take the formula Sn is equals to n by 2 a plus l. अब मैंने यहाँ पे a plus l क्यों यूज किया, बिकॉज मुझे लास्ट टर्म भी पता है और फर्स्ट टर्म भी पता है. ओके, n की वैल्यू क्या आई है 13. व्हाट इज a 34 plus l that is 10. So 13 by 2 into 44 यहाँ पे आएगा 13 into 22. Just multiply 13 into 22. आपका आंसर क्या आएगा, it will be 286. Okay, we get the sum of this AP as 286. तो अब आपको समझ में आया कि हमें ये फॉर्मूला कब यूज करना है. यहाँ पे लास्ट टर्म दिया गया था. ओके, n हमें नहीं पता है, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू फाइंड n बाय द फॉर्मूला ऑफ an. an के फॉर्मूले से आपने n कैलकुलेट किया एंड sn के फॉर्मूले से हमने सम कैलकुलेट किया. So it's very easy example, students. Please try it and solve it accordingly how I have told you to solve. Okay, just try the example. Now I will take next example accordingly. Now students, let us take the next example. Find the sum of all even integers between 101 and 999. अभी आपको यहाँ पे AP दिया है no. So what you are going to do? First you have to create an AP. Let's create the AP. 101 से लेकर 999 तक जो सारे इवन नंबर्स है वो आपको बताना है. तो पहला कौन सा होगा 102, 104 and the last one will be 998. Very easy. You got the AP. So यहाँ से A क्या होगा 102, B क्या होगा 2. What will be 999? The last terms. आपको फाइंड करना है n और Sn. Okay, so first we are going to find n by the formula of an. तो very similar example जो आपने पिछली बार किया, and last example same आपको वही रूल यहाँ पे फॉलो करना है. Okay, 102 plus 2n minus 2. What it will be 998 is equals to 100 plus 2n. यहाँ पे 898 is equals to 2n. This implies n is equals to 449. Okay, आपको यहाँ से n क्या मिला 449. This is your n. Just substitute in the formula of Sn. चलो Sn का फॉर्मूला ये लिख लेते हैं. Sn is equals to n by 2 a plus l. Okay, n क्या है आपका 449 by 2. a what is a 102 और लास्ट टर्म हमारा क्या है 999. So 449 by 2 we get 0 0 1100. So 449 multiply. अगर आप ये डिवाइड करेंगे it will come 550. Okay, so just multiply 449 into 550 and you will get your term Sn. So it was very easy. Just the formula last 449 into 550 ये आपको कैलकुलेट करना है और आपको आपका सम यहाँ पे मिल जाएगा. So in this question what it was given कि आपको इवन इंटीजर्स के सम निकालना है. सिमिलर क्वेश्चन कैन बी टेकन. यहाँ पे आपको इवन की जगह पे क्या दे देंगे और दे देंगे. The same method you have to prefer and find the answer. तो कभी भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो प्लीज ट्राई टू
एक्सपांडेड कि इसमें और क्या पूछा जा सकता है, ओके, और उस हिसाब से आप उसे ट्राई करो. नाउ लेट मी टेक द नेक्स्ट एग्जांपल. Okay, now let's take here another example. If the sum of 14 terms of AP is 1050, आपको यहाँ पे क्या दिया है, 14 terms का sum दिया गया है, and it is written the first term of AP is 10. Find the 20th term. Now please student note down this कि आपको इसमें क्या दिया गया है, पहले वो नोट डाउन कर लीजिए. ओके, S14 मतलब sum of 14 terms आपको दिया है. First term is 10 and you have to find T20 that is equals to question mark. तो हम ये बता सकते हैं अगर आपके पास Sn का फॉर्मूला है, ओके, here 2a plus n minus 1 into d. इसमें से अगर आपको 3 चीजें भी पता है, जैसे Sn हमें पता है 1050, n 14 होगा बिकॉज ये 14 नंबर्स का सम है, 2 into a भी हमें पता है 10. From here we can calculate the value of d. Okay, so 1050 is equals to 7. यहाँ पे ये 7 हो जाएगा. 20 plus 13d. Okay, the 7 gets divided here, so it is equal to 20 plus 13d. अगर आप ये डिवाइड करेंगे the answer comes 150 is equals to 20 plus 13d. यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे so it's 150 minus 20 is equals to 13d. So 130 is equals to 13d. d is equals to 10. आपकी d की वैल्यू कितनी आई, 10. If you know d, if you know a, we know here n is equals to 20. So हम t20 फाइंड कर सकते हैं. a plus n minus 1 into d. That is 10 plus 20 minus 1 into 10. क्या होगा, 10 plus 19 into 10 that is 200. So आपका T20 जो टर्म आया है वो क्या है, 200. So students, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, आपको कुछ भी फाइंड करना है, डोंट गेट स्ट्रेस्ड अप. जो भी थिंग्स गिवन है प्लीज नोट इट डाउन और उस हिसाब से अगर आप ट्राई करेंगे, जो आपको फॉर्मूलेज है उसमें पुटअप कीजिए एंड आपको आंसर इजीली मिलने ही वाला है. So कोई बच्चे होते हैं ना, क्वेश्चन देखते ही मैम इसको हम क्या करें, ये तो क्वेश्चन हार्ड है या फिर ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है. सो डोंट डू लाइक दैट. ओके, जो भी थिंग्स आपको गिवन है प्लीज नोट डाउन द थिंग्स और अकॉर्डिंगली उसे सॉल्व करें. कैन वी गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल. सो स्टूडेंट्स, हियर द नेक्स्ट एग्जांपल इज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 24, 21, 18 एंड सो ऑन फॉर्म द सम ऑफ 78. तो आपको इसमें क्या बताया गया है, व्हाट यू हैव टू फाइंड terms, how many terms. So पहले लिख लीजिए n is equals to question mark. यहाँ से आपको पता है a कितना होगा 24, d कितना होगा 21 minus 24 that is minus 3. ओके, आपको यहाँ पे n फाइंड करना है और आपको Sn की दिया है 78. तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Sn का, n by 2 2a plus n minus 1 into d. Sn क्या दिया है 78. n जो आपको फाइंड करना है 2 into a is 24, n minus 1 into d is minus 3. So please simplify it. ये क्या हो जाएगा 48 प्लस ये हमारा आएगा minus 3n plus 3. ओके, यहाँ से if we divide this 2 here, what it will become 156 is equals to n bracket 48 minus 3n plus 3. इसे और सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको वैल्यू मिलती है 156 is equals to n. 48 plus 3 is 51 minus 3n. Just multiply this bracket 51n minus 3n square. अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या फॉर्म हो रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है. And I know you all will be knowing how to solve quadratic equations. आप इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं n square minus 17n plus 52 is equals to 0. ये और सिंप्लीफाई हो गया. Now what you have to do here is find the value of n. आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. How do we simplify? 52 और यहाँ पे 1 है. We want the number 17. So हमें क्या मिलता है n minus 4 and n minus 13 is equals to 0.
यहाँ से n की वैल्यू आएगी या तो 4 या तो 13 एंड बोथ द वैल्यूज आर एप्लीकेबल। ठीक है, दोनों ही वैल्यूज यहाँ पे क्या होने वाली है, एप्लीकेबल होने वाली है। इट मे बी 4, इट मे बी 13। सो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया है तो यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट बाय एनी मेथड व्हाटएवर यू नो, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, फॉर्मूला मेथड, जो भी आपको पता है आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। अभी हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि हमने स्टार्टिंग से क्या सब किया है। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट्स हमने स्टार्टिंग से जो इस चैप्टर में देखा है वो सारी चीजें हम अभी रिकॉल करने वाले हैं। ओके, स्टार्टिंग में हमने छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़े, सीरीज, सीक्वेंस, प्रोग्रेशंस, ये सारे टर्म्स। ठीक है, टर्म्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें जो है यू जस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एपी। और अगर आपको एपी समझ में आ गया तो इट्स चैप्टर इज वेरी सिंपल। तो एपी क्या था, इट इज अ प्रोग्रेशन, कोई भी प्रोग्रेशन। ओके, इट इज अ प्रोग्रेशन इन विच द फर्स्ट टर्म इज गिवन। ओके, आपको फर्स्ट टर्म जो है वो दिया है एंड द इंडिविजुअल टर्म्स, जो भी इंडिविजुअल टर्म्स है दे आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, they are obtained by adding a fixed number to the previous, okay, to the previous term। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला 3 आपका फर्स्ट टर्म एंड आई वांट एन एपी, तो मैं यहाँ पे +1 करके 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, सो मेरा एपी क्या हो गया 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एपी क्या होता है, अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है आप एपी का सीक्वेंस निकाल सकते हैं। ओके, और उन दोनों का डिफरेंस जो है इट शुड ऑलवेज बी कॉमन, तो वो होता है आपका एपी, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी हमने 3 टाइप्स के पढ़े थे, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट। तो इंक्रीजिंग कब होता है, जब हमारा डी कॉमन डिफरेंस इज ग्रेटर देन 0। डिक्रीजिंग कब होता है, जब कॉमन डिफरेंस इज लेस देन 0 एंड इट इज कांस्टेंट व्हेन d इज इक्वल्स टू 0। दिस मींस यहाँ पे d पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है और ये 0 है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई अबाउट एपी, फॉर्मूलाज क्या है वो तो बहुत ही इजी है। ओके, यहाँ पे हम फॉर्मूला देखेंगे an का। सो व्हाट वाज an, कोई भी टर्म 1 2 3, ओके, व्हाटएवर 8 20 व्हाटएवर वी हैव टू फाइंड, उसके लिए हमें फॉर्मूला है a + n - 1 into d, जिसमें a क्या है फर्स्ट टर्म, d क्या है कॉमन डिफरेंस, ओके, और n क्या है हमारा नंबर ऑफ टर्म, जो भी हमें यहाँ पर पूछा गया है वो नंबर ऑफ टर्म। नेक्स्ट वाज sn, sn का क्या फॉर्मूला था n/2, 2a + n - 1 into d। एक और फॉर्मूला था sn = n/2 a plus l। और आज जो हमने एग्जांपल्स लिए दे वर अबाउट sn, तो आपको समझ गया होगा कि हमें sn कब यूज करना है एंड an कब यूज करना है। दिस वाज द कंसेप्ट अबाउट AP। प्लीज ट्राई टू सॉल्व द एग्जांपल्स गिवन इन योर टेक्स्ट एंड प्लीज टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू स्टूडेंट्स।